I welcome you to the 8th lecture of this casting process. My name is Divyanshu Pandey. I've done my master's from IIT Kanpur and I'm having 3 years of teaching experience and currently working on the TechKey project as an assistant professor in Engineering College, Jhalawar. So I hope all of you are well and healthy. So before starting today's lecture, I would like to recap the things which we have covered till last lecture. Till last lecture, we have seen the basics of casting and the different kind of allowances which we use in casting, different kind of patterns which we use in casting, and we also discussed the design of getting elements. In last lecture, we have seen the Korinov's formula and we have solved numericals based on that. And in today's lecture, we are going to cover the remaining part of the riser design and some more formulas and concepts which we use for obtaining the optimal dimension of riser. Okay. So why do we need riser design? So basically, riser is important component in your casting because it compensates the liquid and solidification shrinkage. Okay. So we all want the volume of riser should be more as compared to shrinkage volume of casting. Okay, because if the volume of riser is not more than the shrinkage volume of casting, that it will not be able to feed the needed molten metal inside the cavity. तो इसलिए हमें चाहिए कि जो आपका राइजर है उसका वॉल्यूम शुड बी मोर एज कम्पेयर टू श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग. कितने अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए? इट शुड बी 3 times ऑफ द परसेंटेज श्रिंकेज ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग. सेकेंड थिंग, जो आपका राइजर है, ओके, उसका सरफेस एरिया कम होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं, बिकॉज वी वांट दैट आवर राइजर शुड सॉलिडिफाई एट द एंड. ओके, राइजर अगर पहले सॉलिडिफाई हो गया आपके मोल्ड से, देन इट विल नॉट बी एबल टू feed the molten metal inside the cavity. That's why we want riser should solidify at the end. एट द एंड का मतलब क्या है कि जब आपका ये कास्टिंग वगैरह सब सॉलिडिफाई हो जाए, कोई श्रिंकेज ना बचे, देन आफ्टर ओनली योर राइजर शुड सॉलिडिफाई. एंड फॉर दैट दिस रिलेशन शुड बी सेटिस्फाइड. अगर आपका राइजर का जो सरफेस एरिया है वो अगर ज्यादा हो गया, if the surface area of your riser is more, then heat transfer will be more and there will be chance to get solidified first. Okay, that's why we use this relationship for obtaining the optimal parameters, or you can say dimension for riser, so that we can increase the solidification time in riser. तो ऑप्टिमल कंडीशन डी और एच यहाँ से आपको इन रिलेशन से आप निकाल सकते हैं. इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं, कुछ और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ रिलेशनशिप दे रखे हैं, जिसकी वजह से हम by using those relationship we can obtain the optimal parameters and optimal dimension of riser. So the second concept which we are going to use for obtaining the optimal dimension is Keynes method. इसके पहले हमने देखा था कोरिनोव्स फॉर्मूला, हमने देखा था, ठीक है, उसी पे बेस्ड ये सारे कॉन्सेप्ट हैं. तो कोरिनोव जो फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड केन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कोरिनोव पे ही बेस्ड एक रिलेशनशिप दिया फॉर ऑब्टेनिंग साउंड कास्टिंग. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक रिलेशन दिया बिटवीन एक्स और वाई एंड ए बी सी आर द कांस्टेंट. एक्स इज द फ्रीजिंग रेशियो. फ्रीजिंग रेशियो क्या है? आपका एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कास्टिंग का डिवाइडेड बाय एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो ऑफ राइजर. ओके, ये फ्रीजिंग रेशियो हो गया. इन्होंने एक पैरामीटर तो ये लिया था. एंड सेकेंड पैरामीटर he had taken is riser volume upon casting volume, जिसको y से रिप्रेजेंट करा है. फिर उन्होंने एक ग्राफ दिया. ओके, ग्राफ क्या है? ग्राफ इज बिटवीन y एंड x. y इज व्हाट? द रेशियो ऑफ राइजर वॉल्यूम एंड कास्टिंग रेशियो, और x इज फ्रीजिंग रेशियो. अब इस ग्राफ में जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, द वैल्यू विच कम्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इफ यू कंपेयर दिस ग्राफ एज अ बेस लाइन, और इस बेस लाइन के ऊपर अगर कोई आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, देन यू विल से योर कास्टिंग इज साउंड. ठीक है, बट अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे इस रीजन में आ गई है, बिलो टू दिस ग्राफ, देन द कास्टिंग विल बी डिफेक्टेड एंड देन यू नीड टू ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ योर राइजर बाय यूजिंग प्रीवियस रिलेशनशिप. ये जो रिलेशनशिप बी वाला मैंने बताया आपको, दिस वन, you need to use this relationship to find optimal dimension of riser. So according to this graph only you can compare that whether your dimension is accurate or not. आपके पास आप कैसे करोगे? मान लीजिए आपके पास डायमेंशन है, तो you need to calculate this freezing ratio and this
ratio between riser volume and casting volume, then you will see where your point is coming, and after comparing this from this graph you can say that your casting will be sound or not. ओके, ये चीज हो गया। तो इस पे वैसे ज्यादा क्वेश्चन वगैरह आते नहीं है, बट आपको अगर ग्राफ में मान लीजिए पूछ लिया गया, किसी पॉइंट से ही पूछ लिया गया कि फ्रीजिंग रेशियो इज दिस एंड वॉल्यूम रेशियो इज दिस and this graph is given to you and the question is asked that what will be the condition of casting, it would be sound or not, it would have some kind of defect or not, then what you need to do, you need to find out the point here। जैसे यहाँ पर पॉइंट आपको अगर क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा है उसके हेल्प से आपको क्या निकालना है, y और x के कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पे। लेट्स से दिस इज अ कोऑर्डिनेट एंड देन यू विल से ये जो पॉइंट मान लीजिए p है, दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को का डायमेंशन लेके आप राइजर डिजाइन करते हो तो आपका जो कास्टिंग होगा दैट विल बी साउंड कास्टिंग, देयर विल बी लेस डिफेक्ट इन दैट कास्टिंग। ओके, तो आई थिंक आपको ये केन मेथड और केन का ये जो ग्राफ है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये इस ग्राफ का चीज मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी तक तो पूछा नहीं गया है, बट फ्यूचर में क्या पता ऐसा पूछ लिया जाए। सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ग्राफ, व्हाई दिस व्हाट दिस ग्राफ मींस एक्चुअली। ओके, तो इसका मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसको ऊपर आता है तो साउंड कास्टिंग होगा, नीचे आता है तो डिफेक्ट होगा, श्रिंकेज होगा। एंड नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई। तो एक्स इज फ्रीजिंग रेशियो, यहाँ पर लिख रखा है व्हाट इज फ्रीजिंग रेशियो, y is riser volume upon casting volume and a b c are the constant, और ये आपके हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब ये भी न्यूमेरिकल जो है ये किताब से लिया है, ये आपके गेट में नहीं आया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है केन्स का न्यूमेरिकल, तो आई थिंक इसलिए गेट में नहीं पूछे जाते हैं। बट हमें पता होना चाहिए, अगर क्या पता अभी तक नहीं पूछा है नेक्स्ट ईयर पूछ लिया जाए तो हमें ये छोड़ना नहीं है। ओके, क्योंकि सिलेबस में तो ये सारी चीजें हैं। Okay, so calculate the size of cylindrical riser, height and diameter equal है, necessary feed steel slab casting, casting का देखो ये डायमेंशन दे रखा है, टॉप राइजर दे रखा है, हमें निकालना है कास्ट फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू, ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें डायमेंशन चाहिए राइजर का। ओके, साइज ऑफ सिलिंड्रिकल राइजर, और सिलेंडर राइजर के केस में दे रखा है द हाइट एंड डायमीटर इज सेम, एंड सेकेंड थिंग इज गिवन कि वो टॉप राइजर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप पता है केन का, विच इज x इक्वल टू a अपॉन b माइनस वाई, y माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमें पता है। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया, सही लिखा है मैंने। ओके, अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू पता करनी है, एबीसी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर इस इक्वेशन में लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 में, और हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक एक करके, पहले x क्या होता है, लेट्स राइट y फर्स्ट। सबसे पहले हम एक एक का वॉल्यूम और सरफेस एरिया लिखते हैं। तो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले आपको जो कास्ट है, कास्ट का वॉल्यूम लिखना है पहले। तो कास्ट का वॉल्यूम होगा 25 इंटू 25 इंटू 5, सो 625 इंटू 5, सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3125 सब सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब कास्ट का सरफेस एरिया कितना आएगा, सो 25 इंटू 25, ये दो फेस ये वाले होंगे, फिर दो फेस आपके होंगे 25 इंटू 5 के, फिर दो फेस होंगे आपके 5 इंटू 25 के। अब इसको भी थोड़ा सा आप करोगे कैलकुलेशन तो यू विल सी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। ये तो आपका कास्टिंग का हो गया। ठीक है, नाउ वी नीड टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर राइजर। ओके, सो इन केस ऑफ राइजर आर वी, राइजर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर के जगह पर डी बाई 2 रखेंगे और एच के जगह पर आप डी रखोगे क्योंकि हाइट एंड डायमीटर इज इक्वल। तो ये कितना आएगा, पाई डी क्यूब अपॉन 4। ठीक है, आई थिंक सही लिखा है मैंने। साथ साथ देखते चलिएगा, अगर गलती होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेना। वैसे यूट्यूब पे वीडियो डालना है मुझे तो गलती तो नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको कमेंट लिखना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा सही करने में। तो एक एक चीज एक्यूरेटली लिखना है सब कुछ। ओके, तो ये आएगा आपका वॉल्यूम। नाउ आई नीड टू राइट द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे बोला गया है टॉप राइजर। तो टॉप राइजर का केस में क्या होता है, जो एक सरफेस है ऊपर का, जो आपका डिस्क वाला सरफेस होता है, दैट ओनली विल बी कंसीडर्ड, नॉट द बॉटम सरफेस। आई मीन if this is cylinder as a riser, then in case of top riser, this bottom surface comes inside the cavity, so we don't consider this surface area, the bottom surface area. We only consider this top one and this curved surface area. Okay, this thing we do in case of top riser. It means there should be 1 pi d square upon 4, the disk area, plus 2 pi rh, so 2 pi r के जगह पर d by 2 और h के जगह पर d, so 2 से 2 कैंसिल हो गया, so you will get कितना आएगा, pi d square upon 4 plus pi d square. ओके, या फिर 1 पॉइंट आप लिख सकते हो 5 by 4 pi d square. Okay, so this will be your surface area of what, riser. Now I need to find out the value of x and y. अब सब कुछ x और y निकालने के बाद ही हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x. सो वैल्यू ऑफ x वाज व्हाट, ये आपका था एरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, एरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ राइजर, ठीक है, यही तो था। अब एक एक करके सारी वैल्यू रखेंगे। तो एरिया वाज 1750 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 3125, सॉरी 3125, एंड अगेन दिस थिंग शुड बी डिवाइडेड बाय आपका जो राइजर का एरिया है, एंड दैट वाज 5 by 4 को मैं 1.25 ले देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, 1.25 pi d square, and this should be divided by, ये आपका pi d cube upon 4, तो इसको लिख दो 0.25 pi d cube. ओके, ये आपका x आ गया। अब इसमें थोड़ा सा गुणा भाग करने वाला चीज है, तो आप जब गुणा भाग करोगे तो ये d वाला कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, आपको ये दिख रहा होगा। और आप थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, उसके बाद देखिए जो वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये जब आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो इसको वैल्यू आएगी 0.112 कैपिटल डी में स्मॉल डी लिख रहा हूँ, हाँ स्मॉल डी, चलो ठीक है। सो ये x की वैल्यू आएगी आपकी। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो y क्या था हमारा, ठीक है, तो y हमारे पास राइजर वॉल्यूम और कास्टिंग वॉल्यूम का रेशियो था, ठीक है। तो राइजर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, पाई डी क्यूब अपॉन 4, और कास्टिंग वॉल्यूम कितना है 3125, ठीक है। आई थिंक यही चीज है। अब इसको भी थोड़ा सा आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे, मैं सबको सिंपलीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि सारी चीजें ले जाके क्वेश्चन नंबर 1 में यूज कर रहे हैं, इसलिए सिंपलीफाइड वे में सारा कुछ लिखना है। ये आएगा आपका 0.000251 डी क्यूब। ओके, अब हमारे पास y की वैल्यू है और x की भी वैल्यू है। अब मैं इन सारी चीजों को इस इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे पुट करूंगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू a अपॉन y माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, सॉरी 0.112 डी इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए 0.01 है, अपॉन y की वैल्यू यहाँ पे जो निकाला है मैंने 0.000251 डी क्यूब, और b की वैल्यू 0.3 एंड c की वैल्यू 1, ठीक है, ये लिखते हैं। y की वैल्यू थी 0.00025 डी क्यूब, ठीक है। b की वैल्यू अभी हमने देखी थी, तो वो था 0.3, ठीक है।
और सी की वैल्यू आपकी 1 थी। ठीक है, अब देखिए आपको ये इतना बड़ा इक्वेशन, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में नहीं आते, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। अब इस इक्वेशन को आप जब अगर किसी के पास कैलकुलेटर होगा जिसमें कि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं 92 ms से ऊपर वाले का जो होंगे उसमें सॉल्व हो जाएंगे, तो वहां से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग दोस कैलकुलेटर्स। एक्चुअली में ये क्यूबिक भी नहीं है, तो एक्चुअली में ये कैलकुलेटर सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही सॉल्व करोगे। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद आपकी जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर। तो मेरा ये न्यूमेरिकल कराने का मेन मोटिव ये था, यू शुड बी एबल टू नो दैट हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। होता क्या है कि दिस अभी जो मैंने जो डेटा लिया था, जो न्यूमेरिकल लिया था, इट इज अ बिट लेंदी, थोड़ा सा लेंदी है। बट अगर थोड़े से पैरामीटर कुछ ऐसे कर दिया जाए जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, ओके, देन अगर क्वेश्चन इजी हो जाए, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन में ऐसा कुछ डेटा लें जिससे कि न्यूमेरिकल वाला कैलकुलेशन पार्ट अगर इजी हो जाए, देन यू विल बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला इजीली। ओके, सो नाउ यू नो दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग राइजर डायमेंशन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि राइजर का जो डाया है इतना, एंड in case of this numerical it is given that h is equal to d. Okay, so h is also equal to 12 centimeter. तो आप यहाँ से वॉल्यूम वगैरह जो भी निकालना है वो राइजर के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये केन मेथड का न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। केन का जो मैंने ग्राफ बताया ये आपको समझ में आ गया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट विच इज नेवल रिसर्च लेबोरेटरी मेथड। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, आपका मॉडिफाइड वर्जन है आपके केन्स मेथड का। क्यों आया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। So this method is simplification of Keynes method, where freezing ratio is replaced by shape factor. So in previous case, we use this formula x equal to a upon y minus b plus c. In this Naval Research Laboratory method, what we do, we just replace this freezing ratio by shape factor. Okay, so freezing ratio is replaced by shape factor, and in why we do this, because in case of complex casting it is very difficult to find out the surface area. अगर कोई difficult casting है, complex shape में है, तो उसका आपका surface area और volume निकालना थोड़ा सा tedious job हो जाता है, difficult हो जाता है। Okay, so for that reason only, to make it easier for different kind of casting, we replaced, the researcher replaced the value of this फ्रीजिंग रेशियो बाई सेफ फैक्टर। ठीक है, अब सेफ फैक्टर भी आपका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर होता है, जिसका ज्योमेट्री से कॉन्सेप्ट होता है। और ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज अगर एरिया ज्यादा होगी तो आपका जो सॉलिडिफिकेशन है वो तेजी से होगा। दैट्स व्हाई वी कंसीडर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हियर। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका नेवल रिसर्च लेबोरेटरी मेथड होता है, फॉर दिस यू नीड ग्राफ। For this, you need graph to obtain a proper dimension of riser. Without having graph, without having data, you cannot obtain the proper value of riser. हाँ, तो आप अगर इससे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, then you will have a graph. आपको एक ग्राफ या फिर आपको कोई डेटा टेबल दिया जाएगा। अब वो ग्राफ कैसे यूज करना है, वो क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। So the graph would be between shape factor and riser volume and casting volume के रेशियो के बीच में। ओके, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। इन प्रीवियस केस द केन्स मेथड, इन एक्स एक्सिस देयर वाज freezing ratio x, and in y direction there was y, which was the ratio of riser volume to casting volume. So in this case the y is same, riser volume to casting volume, but the x axis is changed into shape factor। और shape factor क्या होता है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस का रेशियो। तो मान लीजिए आपके पास कोई अब आप कैसे पता करोगे, हाउ वुड यू चेक दैट विच डायमेंशन विल बी गुड फॉर योर कास्टिंग। सो लेट्स से you have any component like this, any component, या फिर let's say you have cylinder, simple cylinder है आपके पास। ठीक है, so what you will do, you will find out the shape factor of this सिलेंडर का आप सबसे पहले तो शेप फैक्टर निकालोगे। ठीक है, अब शेप फैक्टर निकालने के बाद मतलब क्या, इसका लेंथ,
ठीक है, विड्थ और उसके बाद थिकनेस से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज करने के बाद यू विल फाइंड आउट द सेफ फैक्टर। अब उस करस्पॉन्डिंग सेफ फैक्टर के लिए अब यहाँ पर जो ये ग्राफ है इसमें दो लाइनें हैं। ठीक है, तो ग्राफ में लिखा होगा कि द रेशियो ऑफ मोस्टली द रेशियो ऑफ डी और एच का 1 लेते हैं। इन मोस्ट केसेस डी अपॉन एच फॉर राइजर दे टुक 1, बट दिस ग्राफ इज फॉर डी अपॉन एच इक्वल टू 1 एज वेल एज एच अपॉन डी इक्वल टू 0.5। इन दोनों के लिए लिया हुआ है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, दो केसेस बताए थे मैंने, साइड राइजर और टॉप राइजर के बीच में। तो साइड राइजर के लिए आपका कंडीशन आया था एच इक्वल टू डी, और टॉप राइजर के लिए आपका कंडीशन आया था एच इक्वल टू डी बाई 2। ओके, सो दिस ग्राफ, दो आपका ऊपर वाला ग्राफ है दिस इज फॉर एच इक्वल टू डी, और जो बॉटम वाला ग्राफ है दिस इज फॉर एच इक्वल टू डी बाई 2। Okay, so in your case, let's say safe factor is 10. Safe factor is 10. Let's say the safe factor is की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, और आपका जो h जो हाइट है वो डाया के बराबर है। Then you will draw a perpendicular line from here। अब ये perpendicular line यहाँ पे कहीं कट कर रही है ऊपर वाले कर्व को, क्योंकि in our case the value of the ratio of h upon d is 1, then we will consider the top graph, the top curve, and then we will draw a horizontal line from this point, and then we will get the ratio of riser volume to casting volume, and we have casting volume already। so यहाँ से आप क्या करोगे, riser volume अपॉन कास्टिंग वॉल्यूम, इसको इक्वल कर दोगे, मान लो ये 4.2 समथिंग आ रहा है, 0.42। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, राइजर वॉल्यूम मिल जाएगा। एंड नाउ यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड डी व्हिच इज 1, द रेशियो बिटवीन एच एंड डी इज 1, then you can easily find out the dia or height of the riser। So in case of Naval Research Laboratory method, you need to have the graph first for obtaining the proper dimension of your casting। okay, and you need to find out the shape factor। shape factor का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ विड्थ अपॉन थिकनेस। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। इसका भी न्यूमेरिकल आगे है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, शेप फैक्टर का फॉर्मूला आई थिंक आपको सबको क्लियर ही होगा, ये आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ है, आई थिंक दिस वाज आस्क्ड इन 2016। ठीक है, 2016 के गेट में ये पूछा गया था क्वेश्चन, अगर मैं सही हूँ तो 2016 या 17 ही होगा। okay, so read the numerical first। the dimensions of a cylindrical riser, side riser दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाइट इक्वल टू डाया दे रखा है यहाँ पर। देखिए, साइड राइजर के केस में ऑप्टिमल कंडीशन यही आई थी जब हम डिराइव कर रहे थे, तो इसीलिए मोस्टली केस में साइड राइजर में हाइट और डाया को बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्टिमल कंडीशन आई थी, हमने पहले इसको डिराइव कर रखा है लास्ट लेक्चर में। एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर कास्टिंग। For tabulated shape factor values given, diameter of the riser is, आपको राइजर का डायमीटर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप खुद से सॉल्व करिए, बहुत ही इजी है, पुराना अभी जो लास्ट स्लाइड में जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे है। तो उसके बाद चेक करिए कि आपका जो भी आप सोल्यूशन आ रहा है वो मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर वाज व्हाट, लेंथ width upon thickness, this was the formula। अब यहां पर देखिए, लेंथ क्या है 25 है, width क्या है 15 सेंटीमीटर है, थिकनेस क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 40 अपॉन 5 मींस 8। ठीक है, अब 8 आपका आ गया क्या, सेफ फैक्टर की वैल्यू। अब करस्पॉन्डिंग सेफ फैक्टर के लिए, अब जैसे मान लीजिए इस टेबुलर फॉर्म के ऊपर वो ग्राफ भी दे सकता था क्वेश्चन में। ओके, बट यहाँ पर क्या है, वी हैव द टेबुलर फॉर्म। सो इन टेबुलर फॉर्म फॉर सेफ फैक्टर 8 वी हैव राइजर वॉल्यूम टू कास्टिंग वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू 0.5। सो 8 के करस्पॉन्डिंग ये वाला चीज देखो आप, ये 8 के करस्पॉन्डिंग है, और यहां से हमें पता चला कि राइजर वॉल्यूम अपॉन कास्ट वॉल्यूम इक्वल टू 0.5। ओके,
अब यहाँ पे बराबर लिख देते हैं, तो राइजर वॉल्यूम क्या होगा, एच और डी की वैल्यू बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर एस वॉल्यूम होता है, सो सिंपली राइट पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई 4। ओके, ये तो आपका हो गया वॉल्यूम किसका, राइजर का। ठीक है, तो राइजर का वॉल्यूम आपने लिख लिया। अब दिस शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ योर कास्टिंग, 25 इंटू 15 इंटू 5। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं होगी, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो पाई डी क्यूब अपॉन 4 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 75 इंटू 25। तो इसकी वैल्यू थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, कितना आएगा, 5 ठीक है, इंटू 0.5। अब इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 537.5 पाई डी क्यूब अपॉन 4। अब यहाँ से आप इजीली डी की वैल्यू निकाल सकते हो, फ्रॉम हियर डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो आई थिंक अब निकाल ही देते हैं, 2 मिनट दीजिए मुझे। Okay, so you also need to solve this problem. So you will get the value of d yes, 10.6 सेंटीमीटर। ओके, ये आपकी वैल्यू आएगी डी की। ओके, सो आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल था, पहले तो हमने सेफ फैक्टर की वैल्यू निकाली, आफ्टर गेटिंग सेफ फैक्टर वी जस्ट use this tabular data for obtaining the ratio between riser and casting volume, and after that we use the formula for getting the diameter of riser, और डायमीटर का वैल्यू आपके पास आ गया जो कि हमें निकालना था। ठीक है, ये न्यूमेरिक एंट्री का क्वेश्चन था, आपको ये 10.6 की वैल्यू यहाँ पे एंट्री करनी थी। ओके, अब एक और आपके पास जो मेथड है जो यूज होता है आपका राइजर का वॉल्यूम निकालने के लिए, दैट इज नोन एज मॉडुलस मेथड। ये भी अब देखिए, जहां पर भी वॉल्यूम और एरिया का रेशियो यूज कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग डायमेंशन ऑफ राइजर, these kind of formulas are only used for simple casting, because for complex casting it is very difficult to find out the area। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि मॉडुलस मेथड कहाँ यूज करते हैं, केन मेथड कहाँ यूज करते हैं, तो यू नीड टू आंसर दैट केन मेथड, मॉडुलस मेथड्स आर यूज्ड फॉर सिंपल कास्टिंग वेयर वी कैन इजीली फाइंड आउट और कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ योर कास्टिंग। ठीक है, तो m यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम अपॉन, अब यही यहाँ पे याद रखना है कि m जो है ये वॉल्यूम अपॉन एरिया का रेशियो है। तो अगर आपको राइजर का वॉल्यूम ये रेशियो निकालना है, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द m वैल्यू ऑफ कास्टिंग एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 1.2, और उसके बाद आपको डायमेंशन मिल जाएगा। तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को। सेम न्यूमेरिकल गेट में पूछा गया है, गेट 2016 में। ओके, सो जो पुराना वाला न्यूमेरिकल है वो 2016 में नहीं, ये आई थिंक और पहले पूछा गया होगा, आप देख लेना एक बार, वैसे गेट में आया हुआ है, कब आया है मैंने एंटर नहीं किया। ओके, सो सिलिंड्रिकल जॉब है जिसका डायमीटर 200 mm है, हाइट दिस है, वो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। टू बी कास्ट बाय यूजिंग मॉडुलस मेथड ऑफ राइजर डिजाइन, assume that the bottom surface of cylindrical riser does not contribute as cooling surface if the diameter of riser is equal to its height, then the height of riser is, sorry for the noise। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रिलेशन पता है, और वो रिलेशन क्या है, m riser equal to 1.2 times m casting।
ठीक है। और एम हमारे पास क्या है, एम इज नथिंग बट रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू एरिया। ठीक है। अब चलिए राइजर का केस में हम लिखते हैं। ओके, तो राइजर के केस में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि हाइट और जो भी डायमीटर है वो आपका सेम है। तो ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि इस केस में आपका जो वॉल्यूम आता है वो पाई डी क्यूब अपॉन 4 आता है। ठीक है। और सरफेस एरिया कितना आता है, एज्यूम द बॉटम सर्फेस ऑफ सिलिंड्रिकल राइजर डज नॉट कंट्रीब्यूट, तो नीचे वाला सर्फेस हमें कंट्रीब्यूट नहीं करना है। ओके, कंसीडर नहीं करना है, सॉरी। तो पाई डी अपॉन 4, केवल वन सर्फेस का हमने एरिया लिया और प्लस कर्व सर्फेस का एरिया, विच शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर एच। सो इट मीन्स पाई 2 पाई d by 2 into d, okay, equal to 1.2. Now the m value for casting, तो कास्टिंग का सब कुछ यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले वॉल्यूम लिखते हैं, पाई r, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ r हियर, यहाँ पे डायमीटर है तो r में चेंज कर दिया, पाई r स्क्वायर इनटू h अपॉन, यहाँ तो आपको ऊपर और नीचे दोनों का सरफेस कंसीडर करना है, तो 2 टाइम्स पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई r और r जिसका स्क्वायर ही कर दो। ठीक है, तो दिस विल बी योर वैल्यू। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, पाई डी क्यूब अपॉन 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 ये गया, 5 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1.2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये तो 100 क्यूब हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और नीचे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 टाइम्स 100 स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। आपको ये सारी चीजें साथ साथ करते चलना है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन 5 इक्वल टू 1.5 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाई 4। ओके, ये 1.2 है। नाउ 4 से ये पॉइंट सी बार में चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड नाउ यू विल गेट वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 150। 150 क्या आएगा, एमएम आएगा। ओके, so this 150 will be the diameter of your riser. So you will enter here 150 mm. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक आपको अगर मॉडुलस के फॉर्मूला, अब देखिए क्वेश्चन अगर आता है, यू नीड टू रीड क्वेश्चन केयरफुली, देन टू नो दैट व्हिच मेथड यू शुड यूज फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि आपको केन मेथड यूज करना है, मॉडुलस मेथड यूज करना है, या फिर अगर शेप मान लीजिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था दिस वन, so in this question they have already given you the relationship between shape factor and your riser volume and casting volume के बीच में ऑलरेडी आपको रिलेशन गिवन है। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, जो नेवल मेथड पढ़ा था, वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, नाउ इन दिस न्यूमेरिकल नंबर 22 आई हैव मेंशनड हियर मॉडुलस मेथड। सो ऐसा ही एग्जाम में पूछा हुआ था कि यू शुड यूज मॉडुलस मेथड फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ओके, so first of all, till now you have covered this modulus method, Keynes method, and Newell's method, and Coronov equation. तो ये चार फॉर्मूले आपने देखे हैं, चारों फॉर्मूले पे मैंने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी बता दिए जो आपके गेट पे पूछे गए, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आई थिंक अब इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद जैसे ही आपका थोड़ा सा कास्टिंग का टॉपिक और कवर होता है, देन वी विल सॉल्व फर्दर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब क्या है कि till now we have covered the design portion of riser. So we have seen the optimal condition of riser. Side riser हमने देखा कि for side riser the height of riser and the diameter of the riser should be same. For top riser we have seen the height should be half times equal to the value of your diameter of your riser. Okay, and we have also seen that sorry, the top riser is more preferable as compared to side riser because टॉप रेजर में आपका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम आता है, नीचे वाला पोर्शन आप उसको काउंट नहीं करते हो सरफेस एरिया में, बिकॉज़ दैट कवर्स इनटू मोल्ड। ओके, सो नाउ वी वांट टू नो दैट वेयर शुड वी प्लेस योर राइजर इन द कास्टिंग। तो अभी तक हमने ऑप्टिमल कंडीशन तो समझ लिया कि व्हाट इज ऑप्टिमल कंडीशन फॉर योर राइजर। नाउ वी वांट टू नो वेयर शुड वी प्लेस योर राइजर।
So according to the shape of your casting, we decide where we should keep your riser. So first of all, यहाँ पे पहला जो डायग्राम है उसको देखिए. If the shape of your casting is uniform, अगर आपका कास्टिंग का शेप यूनिफॉर्म है तो आप एकदम सेंटर में राइजर कहीं भी पुट कर सकते हो. तो यहाँ पर जो फीडिंग है मोल्टेन मेटल का वो पूरे एरिया में इजीली हो सकती है. ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए होगा. यहाँ पे अगर बहुत ही ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए मटेरियल. ओके, अगर मटेरियल ज्यादा थिन है तो यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन तेज होगा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. तो दिस इज फॉर थिकर 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 एंड यूनिफॉर्म बॉडी. यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस ज्यादा कम नहीं है. अब मान लीजिए कोई ऐसा आपके पास कंपोनेंट है जहां पे कुछ पोर्शन है वो ज्यादा थिक है और कुछ पोर्शन जो है वो थिन है, बट थिकनेस और लेंथ का रेशियो, जो आपका लेंथ और थिकनेस का रेशियो है, ये बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, ये इतना ज्यादा नहीं है कि भाई थिनर पोर्शन में पहले ही सॉलिडिफिकेशन होता है, इतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी कुछ पोर्शन आपके थिन है और कुछ थिक है. सो इन दिस केस व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड राइजर ऑन द थिकर साइड, क्योंकि थिकर साइड जो होता है वहां पर जो कूलिंग होती है वो स्लो कूलिंग होती है. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी प्रोवाइड राइजर ऑन द थिकर साइड. अगर यहाँ पर कर दोगे तो ये पहले से सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो बाकी जो फीडिंग है वो बाकी के रीजन में नहीं हो पाएगी. ओके, तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया. तो अगर डायग्राम इज गिवन टू यू, okay, this kind of diagram, and the question is asked that if there is a thicker portion and if there is a thinner portion in the same casting, then where should we keep our riser? So you should answer accordingly. If there is a if there is any area where the portion is thicker, you should keep your riser in that area only, क्योंकि वहां पर जो आपका कूलिंग है वो स्लो होता है. So this is the reason. तो पहला आपको ये दो केस समझ में आया. अब एक तीसरा केस और आता है कि मान लीजिए आपका जो राइजर है, सॉरी जो कास्टिंग है, जो कास्ट है प्रोडक्ट जिसको आपको कास्ट करना है वो काफी थिन है. ठीक है, थिकनेस उसकी काफी कम है. तो ये लेंथ टू थिकनेस रेशियो बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, ठीक है. तो जनरली जो 100 mm तक के थिकनेस वाले जो कंपोनेंट होते हैं उसको इजीली आप एक राइजर से कास्ट कर लेते हो, बट उससे ज्यादा कम होने लगता है तो हमें कभी कभी ज्यादा नंबर ऑफ राइजर की जरूरत पड़ती है, 2 राइजर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अब 2 राइजर की जरूरत कब पड़ेगी उसका एक रिलेशनशिप यहाँ पे गिवन है कि मान लीजिए आपका ये कास्ट है. ओके, तो कास्ट जो राइजर है, राइजर से कास्ट के सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4.5 टी होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे टी क्या है? टी इज द थिकनेस ऑफ योर कास्टिंग. ओके, एंड दिस इज योर राइजर. सो इन द फर्स्ट केस यू कैन सी वी कैन यूज सिंगल राइजर इन दिस केस, बिकॉज यहाँ से भी आपका साइड से जो लेंथ है 4.5 टी है और यहाँ से भी लगभग ऑलमोस्ट 4.5 टी है, तो 2 राइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ इफ यू सी द सेकंड केस, if you see the second case, from one side the distance between riser and your side is 4.5 t और दूसरे साइड में वैल्यू जो है वो 4.5 से ज्यादा हो जा रही है. सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू यूज 2 राइजर हियर. आप कहोगे 2 राइजर लगाने का फायदा क्या है? देखिए होता क्या है, when your casting component is thinner, ठीक है, काफी थिन है, and you are using a single riser here like this, so what will happen, दिस फार रीजन, जो आपका रीजन जो आपके राइजर से दूर पड़ रहा है, ठीक है, आपका जो ये राइजर से दूर पड़ रहा है वहां पर पहले कूलिंग होगी, ऑब्वियसली पहले कूलिंग होगी. अब यहाँ पर कूलिंग होगी, यहाँ पे श्रिंकेज स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ आगे वाले जो पोर्शन यहाँ पे भी श्रिंकेज स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो थिनर पोर्शन है इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसीलिए तो फिन थिन बनाए जाते हैं. सरफेस एरिया ज्यादा से होगा, होने से क्या होगा, जो मटेरियल है, जो मोल्टेन मेटल है वो तेजी से सॉलिडिफाई होने लगेगा. सो मोल्टेन मेटल विल स्टार्ट सॉलिडिफाइंग वेरी फास्टली. ओके, और श्रिंकेज होगा तो अब सॉलिडिफिकेशन तेज होने की वजह से जो एक राइजर है वो इतना, this single riser will not be able to provide the feed, will not be able to feed the molten material to cover up all kind of shrinkage in both direction. ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे श्रिंकेज यहाँ पर हो रहा है और स्टार्टिंग में भी यहाँ सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया है. ठीक है, और थिन रीजन होने की वजह से जहाँ पे राइजर है उसके नीचे वाला पोर्शन भी सॉलिडिफाई हो जा रहा है, मतलब पूरा रीजन तेजी से सॉलिडिफाई हो रहा है. ओके, और श्रिंकेज भी हो रहा है, बट वी डोंट हैव एनी पैसेज टू प्रोवाइड मोल्टेन मेटल टू कंपनसेट द श्रिंकेज अमाउंट. ओके, so that's why we need to provide different riser, 2 riser in case of thinner specimen. अगर आपके पास काफी थिन कास्ट है तो उसके लिए आप 2 राइजर यूज करते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे कोई ऐसे डायमेंशन दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि भाई यहाँ पे काफी थिन ऑब्जेक्ट है, मिनिमम थिकनेस है और सरफेस एरिया ज्यादा है, then should we use single riser or 2 riser, then you need to
check by using this concept that the distance between the riser surface and the edge of the casting should not more than 4.5 t. ओके, ये जनरली पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट ऐसे ही नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये चीज मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, अब देखो इसमें से कुछ चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चिल और जो पैडिंग होती है वो क्यों जरूरत पड़ती है, बट एक बार और यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे कि चिल्स और पैडिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। चिल्स का हमने डिस्कशन पहले करा था, आई थिंक पैडिंग के बारे में हमने डिस्कशन नहीं करा था। तो मेटालिक चिल आर यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन एंड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट। ओके, दिस थिंग आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। द पर्पस ऑफ पैडिंग एंड चिल आर मोर और लेस सेम। पैडिंग में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, इट आल्सो मिनिमाइज द इरोजन। this only extra thing covered by padding. Okay, अब थोड़ा देखते हैं पैडिंग और चिल्स यूज कहाँ होते हैं। तो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए, नोट भी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो भी आपका कंपोनेंट है कास्ट का, अब इसका जो शार्प एज होता है, जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर शेप है, तो दिस विल बी द शार्प एज ऑफ योर कास्ट। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी. So A, B, C, D are the corners of your casting, and these are the sharp edge, and the possibility of erosion at the sharp edge is more. तो sharp edge पे erosion डैमेज होने की probability ज्यादा होती है, possibility ज्यादा होती है. So for that we need to provide some kind of support on this corner areas to minimize the erosion. And second thing, यहाँ पे जो एरिया है, ये जो आपका जो कॉर्नर आता है, यहाँ पर जो कूलिंग रेट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, वो कूलिंग रेट स्लो हो जाता है, उस चीज को भी हमें मेंटेन करना है। टू मेंटेन द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन वी आल्सो प्रोवाइड पैडिंग यहाँ पे कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर पे यहाँ पे पैडिंग क्या कर रहा है, पहले तो इरोजन रोक रहा है, देन एक्सेस हीट यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बिकॉज दिस पैडिंग इज ऑफ मेटेलिक मटेरियल। तो जनरली सेम मटेरियल का ही होता है, जिस मटेरियल का आपका मोल्ड होता है। ओके, तो ये आपका, अब देखिए कुछ कुछ जगहों पे अगर आप पढ़ोगे तो जो पैडिंग है वो इंसुलेटिंग पैडिंग भी यूज करते हैं, कुछ जगहों पे मेटालिक भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेटालिक है तो आपका हीट भी एब्जॉर्ब करेगा, और ये हीट जो अगर एब्जॉर्ब करेगा तो जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन है उसमें भी हेल्प करेगा आपके कास्टिंग में। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो आप जब बुक में पढ़ोगे तो ये भी बताएगा कि जो पैडिंग है दैट हेल्प्स इन टू इम्प्रूव द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन या फिर मैक्सिमाइज हीट ट्रांसफर, क्योंकि एक्सेस हीट जो यहाँ पर कॉर्नर पे है, ज्यादा अमाउंट ऑफ मोल्टेन मेटल होने की वजह से उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन होगा वहां पे उस एरिया पे भी। अब यहाँ पर भी हमने यही पढ़ा था पहले कि अब जैसे इस वाले कॉर्नर में देखो तो यहाँ पे ये थिकनेस बढ़ गई ना, ये थिकनेस अगर आप यहाँ से देखोगे थिकनेस बढ़ गई, यहाँ पे मटेरियल ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कूलिंग होगी वो स्लो होगी। अब एक्सेस हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो टू एब्जॉर्ब एक्सेस हीट वी एडेड अ मेटालिक पार्ट विच इज नोन एज चिल। और चिल जो है वो सेम मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल का आपका कास्ट होता है। इट विल एब्जॉर्ब द एक्सेस हीट, जिससे कि आपका जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन है वो मेंटेन रहे। ओके, सो chill helps to provide directional solidification. Padding also metallic padding also helps to provide directional solidification, as well as it also reduce the erosion. तो चिल और पैडिंग का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैपलेट भी मैंने बताया था पहले। अब देखिए तीन चीजें पूछी जाती हैं, चिल, पैडिंग, चैपलेट। ओके, और कोर फ्रेम। तो चिल मैंने बता दिया भाई, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कॉर्नर पे आपने दे दिया। पैडिंग क्या है, जो आउटर सरफेस है आपके, जहां पर शार्प आउटर सरफेस होते हैं वहां पे भी प्रोवाइड पैडिंग टू मिनिमाइज इरोजन एंड टू प्रोवाइड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। चैपलेट इज बेसिकली यूज्ड टू सपोर्ट द कोर को सपोर्ट करने के लिए जो चीजें ऑब्जेक्ट यूज करते हो या जो एक तरीके से एलिमेंट यूज करते हो, दैट इज नोन एज चैपलेट। नाउ आपको कोर प्रिंट क्या होता है, कोर प्रिंट मैंने आपको बताया था, कोर प्रिंट इज यूज to handle the buoyant force walking over the core। तो buoyant force जब वो आपके ऊपर एक्ट करेगा आपके कोर पे, तो आपका जो कोर है वो डिस्प्लेस होना चाहेगा अपने जगह से। सो टू होल्ड द कोर एक्यूरेटली वी प्रोवाइड कोर प्रिंट। तो ये चीज आप मेरे आई थिंक फोर्थ लेक्चर में आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने कोर प्रिंट के बारे में बताया। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, कोर प्रिंट, चैपलेट, पैडिंग और चिल। ठीक है, इन पे क्वेश्चन पूछे गए कौन सा कहाँ यूज होता है, और इन पे मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं।
So after covering all this theory part, I will give some theory questions also for practice purpose. In that, I will show all kind of problems which were asked in previous ESC exams as well as in GATE exam. तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं. ओके, अब हमें स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग. अभी तक तो हमने देख लिया कि भाई बेसिकली जो सैंड कास्टिंग यूज करते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी देख ली, उसमें जो भी गेटिंग एलिमेंट है उसका डिजाइन देख लिया, राइजर का डिजाइन देख लिया, all kind of allowances देखे. Now we need to cover different kind of casting which we use in industries, and then we will study about the defects, और तब जाके आपका कास्टिंग खत्म होगा और फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एट द एंड. अभी तो साथ साथ करें ना, बाद में भी एकदम से एक तरीके से सेट लाऊंगा मैं क्वेश्चंस का, जिसमें केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे क्योंकि पूरा कास्टिंग कवर हो जाएगा. आई थिंक लास्ट लेक्चर में आसान करेंगे. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग देख लेते हैं. बाकी एक एक कास्टिंग के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. So casting can be classified into 3 categories: expandable mold, permanent mold and continuous casting. कई जगह continuous casting को नहीं दिखाया जाता है, बट continuous casting को भी कई जगह किताबों में एक कैटेगरी में रखा हुआ है, तो मैंने भी यहाँ पे तीसरा पार्ट में रख दिया. ओके, तो एक्सपेंडेबल मोल्ड. अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका मोल्ड है, ओके, वो एक बार यूज होता है, सिंगल टाइम पर्पस के लिए यूज होता है. ओके, so this is not permanent. Your mold is not permanent. That's why we say expandable mold. Okay. दूसरा जो टाइप है इसमें परमानेंट मोल्ड होता है. इसमें आपका जो मोल्ड है वो परमानेंट होता है और इसमें सारे प्रोसेस लगभग मास प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं. अब चूंकि एक्सपेंडेबल मोल्ड में आपका जो भी मोल्ड है वो एक तरीके से सिंगल टाइम यूज के लिए है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर मास प्रोडक्शन. बट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट मोल्ड, आप लोग देखोगे इन्वेस्टमेंट मोल्ड में हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं वो मास प्रोडक्शन में भी यूज हो जाता है. तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको मैं आपको बताऊंगा जब डिटेल पढ़ेंगे तो. ठीक है, और परमानेंट मोल्ड मैंने आपको बता दिया, दिस इज यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन. और यहाँ पे जो मोल्ड है वो एन नंबर ऑफ कंपोनेंट को कास्ट करने के लिए यूज में आ सकता है. नाउ कंटीन्यूअस कास्टिंग क्या होता है? कंटीन्यूअस कास्टिंग जो होता है ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स कास्ट करने के लिए यूज होता है. जो बड़े बड़े लंबे लंबे बार्स बनते हैं. इफ यू वांट टू you have seen the large bar having a very high thickness, like you have seen the pillars also. पिलर देखा है ना आपने, सॉलिड पिलर, बड़े बड़े जो सॉलिड पिलर होते हैं, या फिर जो मोटे मोटे सीट्स होते हैं जिसकी थिकनेस आपकी 150 mm से भी ज्यादा होती है. सो दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, can be cast by using continuous casting. In this what we do, we pour molten metal. ठीक है, molten metal एक जगह से pour होता है और उसके बाद मतलब सेमी molten metal होता है, और जैसे जैसे वो आगे आता है वो सॉलिडिफाई होता जाता है, एंड देन वी पास दैट सेमी सॉलिडिफाइड मटेरियल इन बिटवीन द रोलर, थ्रू बिटवीन द रोलर के बीच में पास करते जाते हैं और आपको एक लंबी सीट मिलती है कंटिन्यूअस वे में. इसीलिए इसको कंटिन्यूअस कास्टिंग बोलते हैं. ठीक है, तो हमें जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और बाकी जो पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं इनसे, तो इसलिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो कास्टिंग है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है. तो ईच एंड एवरी मेथड विल बी डिस्कस्ड इन द लेक्चर, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम सैंड कास्टिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है. वी विल स्टार्ट विद शेल एंड इन्वेस्टमेंट मोल्ड, और ये आई थिंक ये चारों कवर हो जाएगा ये लेक्चर में. ओके, so in next lecture we will start with expandable mold, और अगर टाइम मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में ही, so we will also cover some permanent molds also. Okay, तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है और इसके बाद हम देखेंगे कास्टिंग डिफेक्ट. सो आई होप आपको लेक्चर वगैरह पसंद आ रहा होगा. तो आई विल से इफ यू आर लाइकिंग ऑल दिस स्टफ देन यू कैन शेयर ऑल दिस थिंग विद योर फ्रेंड्स. उससे क्या होगा, देखिए ज्यादा लोगों के पास जाएगा तो हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा, जैसे कि हम थोड़ा और मोटिवेट होकर वीडियोस वगैरह बनाएंगे, क्योंकि अभी व्यूज काफी कम आ रहे हैं हमने देखे हैं. सो आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और जितनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं कराता हूँ यहाँ पे वीडियोस में, you need to solve all those questions by yourself, and after that also if you have any kind of book and all, you can also solve those numericals on those problems. And if you are facing any kind of difficulty, you can post that numerical into telegram group, or you can comment on YouTube पे जो comment section आता है, there also you can put your problems. Okay, so thank you all.